Hello, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are well, safe and sound at your place. Welcome back on my channel DD Science Library with another interesting video. So first of all, please do like my page on Instagram Zara.60391. Thank you. So in this video, we are going to study what is a calcium and what are the deficiency diseases and what are the sources of calcium. So let's begin with the video. So what is a calcium? Calcium is a mineral which is present in your body. It is naturally present in your teeth and bones, but it is very important to keep your bones and teeth stronger and gives them the structure and hardness. Calcium basically आपके teeth को, आपके bones को strong रखने में help करता है, and it also helps your heart to beat normal. इसका एक और function ये है कि यह आपके heart को normally beat करने में help करता है. Here I have mentioned the atomic number of calcium as well, which is 20. Atomic number क्या होता है? ये जो chemistry के students हैं, इन्हें पता है कि periodic table में जिस जगह पे element मौजूद होता है, उस number को कहते हैं atomic number. For example, hydrogen periodic table में number 1 पे है, first element है, तो उसका atomic number 1 है. इसी तरह कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में 20th पोजीशन पे है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 20 है. एटॉमिक मास इसका 40 है और सिंबल इसका Ca है. ये एटॉमिक मास है इसका और ये Ca है. अच्छा, deficiency of calcium can cause diseases such as osteoporosis and osteomalacia. ये दो टाइप ऑफ डिफिशिएंसीज हैं जो कैल्शियम की डिफिशिएंसी से होती हैं, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. Calcium is also very important for pregnant and breastfeeding women because it supports the growth and development of a baby inside the womb as well as outside. So calcium is basically a very important mineral for human body. So what are the sources of calcium? Calcium is mostly found in dairy products such as milk, butter, cheese, buttermilk. Buttermilk is very rich in calcium. It is also found in leafy vegetables such as broccoli, cabbage. It is also found in eggs, yogurt. So these are the main sources of calcium which you should take to maintain the calcium level in your body. Now let's discuss the diseases which are caused by the deficiency of calcium. Number 1, osteoporosis. It is a disease in which your bone density or bone mass becomes very low, that gives decrease your bone strength and due to which your bones start breaking easily. इसमें क्या होता है कि आपके जो bone density होती है, bone में जो mass मौजूद होता है, वो इतना decrease हो जाता है जिसकी वजह से bones की strength decrease हो जाती है और बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि एक नॉर्मल सी फॉल से, एक नॉर्मल से शॉक से और हिट से आपकी बोन्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं. जैसे कि आपके पास यहाँ मौजूद है ये डायग्राम, ये एक हेल्दी बोन की डायग्राम है और ये एक डिजीज वाली बोन की डायग्राम है. इसमें आप देख रहे हैं ये पोर्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे से पोर्स बने हुए हैं. इसी तरह आपकी बोन्स में ये मांस की जगह ये पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, भुरभुरी होनी शुरू हो जाती है बोन और इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है, इसकी वजह से बोन ईजिली ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर्स ईजिली हो जाते हैं. अच्छा, एज के साथ साथ क्या होता है कि आपकी कैल्शियम लेवल बॉडी में नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है और उस एज में आपके इस ऑस्टियोपोरोसिस होना बहुत, उसका लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है तभी हम जब बुजुर्ग होते हैं हमारे, आपने देखा लाइक आफ्टर 40s, आफ्टर 50s, 45 की एज में आपकी बोन्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है. आपके जो नीज हैं उसमें आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि आपका कैल्शियम लेवल बहुत डिक्रीजिंग पॉइंट पे होना शुरू हो जाता है. और उसमें एक हाई चांस ये हो जाता है कि आपको ये डिजीज़ हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग व्हील चेयर्स पे आ जाते हैं, वो वॉक नहीं कर पा रहे होते. बहुत सारे लोग जो हैं वो बेड रिडन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि कैल्शियम हम
अच्छी इनटेक में नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से अच्छा ये जो डिजीजेस हैं ये अचानक नहीं होती हैं आपकी, ये डिजीजेस अचानक नहीं होती, ये प्रोलॉन्ग डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से डिजीजेस जो हैं वो होना शुरू होती हैं। काफ़ी अरसे से आप कैल्शियम लेना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीजेस एक एज पे आके लाइक मेनली 50s में 45-50s में ये डिजीजेस होना शुरू हो जाती है। खैर आजकल तो बहुत यंग जनरेशन में भी ये डिजीजेस हो रही हैं, बच्चों में डिजीजेस हो रही हैं जिसे रिकेट्स कहा जाता है। तो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, हम वो सोर्सेज नहीं ले रहे हैं जिससे कैल्शियम हमारी बॉडी में हो। और 30s के बाद आप कैल्शियम की सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं। एक एज आती है जिसमें आपको सप्लीमेंट्स लेना भी ज़रूरी होते हैं कैल्शियम की, विटामिन डी की, वो हम नहीं लेते, निगलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक पॉइंट पे आके ये डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। So another disease is osteomalacia. Osteomalacia is the softening of bones in which your bones become very soft and they can bend easily. And due to that, fractures occur easily. This disease occurs due to the deficiency of vitamin D, which is very helpful for the absorption of calcium. Vitamin D is very important for the absorption of calcium in your body. That's why you should take vitamin D and calcium regularly in adequate amount. It is very important. अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपकी bones जो हैं at the age of like above 40-45 आपकी naturally bones weak होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं होता है adequate amount में, तो आपको इन diseases का सामना करना पड़ता है। अब here you can see there is a normal anatomy of a thigh bone which is obviously attached to your hip. This is a normal anatomy and this is a rickets. Rickets बच्चों में कहा जाता है। इसमें क्या आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो बोन है ये easily bent हो गई है, इतनी सॉफ्ट है कि ये बेंट हो गई है, जिसकी वजह से आपको फ्रैक्चर्स बहुत इजीली हो जाते हैं। ज़रा से आप कहीं से टकरा जाएं, कहीं आप थोड़ा सा गिर जाएं, आपको इजीली फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, आपकी बोन्स इतनी वीक हो चुकी होती हैं। इनके इसके सिम्टम्स यही हैं कि आपकी हिप में पेन होता है, कि बस मसल वीकनेस होती है और फ्रैक्चर्स होते हैं बहुत इजीली, आपको फ्रैक्चर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। यू आर नॉट एबल टू वॉक इवन सेट, पेशेंट्स बहुत वीक हो जाते हैं, व्हील चेयर पे आ जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं। सो इन द एंड आई मस्ट से you should take calcium and vitamin D regularly in an adequate amount so that you guys can not suffer these type of diseases at your old age. I hope you guys like this video. It is a very small topic but it is very important to discuss. I hope you guys like my video. Till next video, take care, Allah Hafiz, and have a great day.